بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اور بدر اکیلے ہی ہال میں رہ گئے تھے اور میں اسے ہی بار بار دیکھے جا رہی تھی، جو کہ آج سے پہلے کی نسبت زیادہ پیارا لگ رہا تھا، اور آج اس کے چہرے پر بھی خوشی کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ میرے بار بار اسے دیکھنے پر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھے دیکھنے لگا اور کہا کہ آج میں زیادہ پیارا لگ رہا ہوں، جو ایسے بار بار مجھے ہی دیکھے جا رہی ہو۔ اس کی بات پر میں شرمندہ ہوئی اور پھر اسے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ پھر تم ایسے کیوں مجھے دیکھ رہی ہو، وہ بھی پیار بھری نظروں سے۔ اس کی بات پر میں جھنجھلا کر اٹھ گئی اور کہا کہ میں خالہ کو دیکھ کر آتی ہوں۔ میں اتنا کہہ کر وہاں سے بھاگ کر کچن میں آ گئی۔ مجھے کچن میں دیکھ کر میری خالہ نے کہا، بیٹا تم کچن میں کیوں آ گئی؟ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں، اس لیے جو دماغ میں آیا وہی کہہ دیا، خالہ وہ میں کچن میں پانی پینے آئی تھی۔ میری بات سن کر خالہ نے کہا کہ تم کیوں آئی؟ بدر کو کہتی وہ لا دیتا تمہیں پانی، آخر تم مہمان ہو ہماری، اس سے ہی تو جان چھڑا کر یہاں پر آئی ہوں۔ تم نے کہا کچھ؟ میری بڑبڑاہٹ سن کر خالہ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا نہیں خالہ، میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو زحمت کیوں دیتی ہو، میں نے خود پانی پینا تھا اس لیے خود ہی کچن میں آ گئی۔ اتنے میں ہی خالہ نے مجھے گلاس میں پانی بھر کر دیا اور کہا کہ میں اس کو پی لوں۔ میں نے جلدی سے وہ گلاس تھاما اور کرسی پر بیٹھ کر جلدی سے اس پانی کو 3 سانسوں میں اندر لے گئی۔ میں نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھا اور باہر آ گئی۔ میرا نام حوریہ تھا اور میری عمر 21 سال تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ میں ایک ہائی کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جہاں پر مجھے ہر چیز میسر تھی۔ میرے 2 بھائی بھی تھے جو کہ مجھ سے چھوٹے تھے اور بے حد شرارتی تھے۔ ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہی گھر میں رونق برقرار تھی اور سبھی ان سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میرے گھر میں میرے دادا دادی، میرے ابو امی اور ہم تینوں رہتے تھے، اور ان کے علاوہ ہمارے گھر میں ملازم بھی رہتے تھے جو کہ گھر کے کام وغیرہ کرتے تھے۔ ہم ایک شاندار بنگلے میں رہتے تھے جو کہ بہت ہی بڑا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی گھومنے کا بہت شوق تھا، اس لیے ہمیشہ ٹرپ پر جایا کرتی تھی، اور میرے والدین نے بھی مجھے کبھی اس چیز سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ ہم لوگ تو فیملی ٹرپ پر بھی جاتے تھے، اور میرے دادا اور دادی تو لازمی جاتے تھے کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا۔ وہ ہمیں بالکل دوستوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتے تھے، اور جب بھی کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ہمارے گھر والے ہمیں ڈانٹنے کی بجائے پیار سے سمجھاتے، اور ہم اس بات کو اچھے سے سمجھ لیتے۔ میرے بابا دادا ابو کا بزنس سنبھالتے تھے، جو کہ انہوں نے بہت ہی محنت سے بنایا تھا۔ دن ایسے ہی سکون سے گزرتے جا رہے تھے اور ہم سب اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ میں یونیورسٹی کی طالب علم تھی۔ میرے 2 بھائی تھے جو کہ دونوں ہی مجھ سے چھوٹے تھے۔ بڑے کا نام آلیان تھا اور اس کی عمر 17 سال تھی، اور چھوٹے کا نام رومان تھا جس کی عمر 15 سال تھی۔ آلیان سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، جبکہ رومان 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ دونوں اپنی پڑھائی میں بہت تیز تھے۔ میری اپنے پورے خاندان میں اپنی خالہ سے زیادہ بنتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا جو کہ 24 سال کا تھا جس کا نام بدر تھا، اور ایک بیٹی جو کہ 17 سال کی تھی اور اس کا نام دعا تھا۔ وہ بھی اس وقت سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ بدر بی ایس کرنے کے بعد بی ایڈ کر رہا تھا۔ دن اپنی پوری رفتار کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے۔ روز کی طرح آج بھی میں یونیورسٹی سے واپس آئی تھک گئی تھی، اس لیے فرحت بی بی ملازمہ سے کہا کہ وہ میرے کمرے میں ایک جوس کا گلاس بھیج دیں۔ انہوں نے میری بات پر اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ میں جاتے جاتے واپس مڑی اور ان سے کہا کہ ماما بابا کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ صاحب جی اور بیگم صاحبہ بڑے صاحب کے کمرے میں ہیں اور کوئی ضروری بات کر رہے ہیں۔ میں نے وہیں پر موجود ٹیبل پر اپنا بیگ رکھا اور دادا ابو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ان کے کمرے کے باہر پہنچی اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اندر سے آنے والی آوازوں کی وجہ سے میرے ہاتھ وہیں پر رک گئے، کیونکہ اندر وہ سب کسی حویلی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ کمرے سے دادا ابو کی آواز آئی، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم اس حویلی میں واپس تو نہیں جا سکتے اور نہ ہی اسے بیچ سکتے ہیں، اس لیے اسے ایسے ہی رہنے دینا بہتر ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ ہماری ایک عدد حویلی ہے اور اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔
मुझे पुरानी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। मैं जानती थी कि अब मुझे क्या करना है। मैं वहां से दबे कदमों वापस ऊपर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाकर जल्दी से फ्रेश हुई और फिर इतनी देर में फरहत भी मेरे जूस का गिलास ले आई। मैंने जल्दी से वो जूस का गिलास पिया और खाली गिलास वापस उनको थमा दिया। मैंने उनको जाने से पहले शुक्रिया कहा और फिर उनके साथ ही नीचे आ गई। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था, इसलिए सब डाइनिंग टेबल के गिर्द अपनी अपनी कुर्सियों पर बराजमान खाने के साथ इंसाफ कर रहे थे। हम सब बाहर लाउंज में ही दादा अब्बू और दादी अम्मा के साथ बैठ गए। मैं अपनी दादी के पास बैठी और उनसे बातें करने लगी। मैंने उनकी गोद में सर रख लिया तो वो मेरे सर में उंगलियां चलाने लगी। वो उंगलियां चलाने के साथ साथ मुझसे बातें भी कर रही थी। मैंने अपनी दादी से कहा कि दादी अम्मा, मैं आपसे एक बात पूछूं? तो उन्होंने कहा, हाँ ज़रूर पूछो। मैंने उनसे कहा कि हम इस घर से पहले कहाँ पर रहते थे। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गई थी, जो कि उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने जल्दी से संभल कर कहा कि हम लोग पहले दूसरे शहर में रहते थे, यहाँ तो हम बाद में आए थे। मैंने अपनी दादी से कहा कि आप लोगों ने वो घर क्यों छोड़ा? तो उन्होंने कहा, तुम ये सारी बातें क्यों पूछने बैठ गई हो? तो मैंने कहा कि वैसे ही पूछ रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा हम छुट्टियों में अपने पुराने घर में जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी दादी ने फौरन मना कर दिया और कहा कि हम सब कहीं और चलेंगे, लेकिन वहाँ नहीं जा सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ, क्यों नहीं जा सकते? दादी अम्मा ने कहा कि क्योंकि वो घर हमने बेच दिया था, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। अपनी दादी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी कि वो मुझसे क्यों झूठ बोल रही थी, और ये भी झूठ बोला कि हम पहले दूसरे शहर में रहते थे। हालांकि हम तो इसी शहर में एक बड़ी हवेली में रहते थे, जो कि उन्होंने अभी तक बेची भी नहीं थी। उसके बाद मैंने भी इस सब के बारे में उनसे कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैंने क्या करना है, और यही सोचकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखरी थी। दिन अपनी रफ्तार के साथ गुजरते जा रहे थे। मुझे यूनिवर्सिटी से हफ्ता इतवार को छुट्टी होती थी, इसलिए मैं उन दिनों कहीं सैर के लिए निकल जाया करती थी, लेकिन कभी अकेली नहीं गई थी। इस बार मैं अपनी खाला के घर गई थी और बदर खुद मुझे लेने आया था, लेकिन खाला को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। इसलिए बदर को भी मैंने ही उन्हें कुछ भी बताने से मना किया था। अगर मैं बदर को मना ना करती तो वो कब का उन्हें बता चुका होता। वो मुझे गाड़ी में लेने आया था। जब हम घर पहुंच गए तो मैं अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलने ही लगी थी कि बदर ने जल्दी से आकर मेरी तरफ का दरवाज़ा खोला। बदर की इस हरकत पर मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करता था। वो मेरा बहुत प्यार लगता था और यही वजह थी कि उसे मेरी हर बात माननी पड़ती थी, और जब वो कोई बात नहीं मानता था तो मैं उससे नाराज़ हो जाती और फिर वो मेरी बात मान लेता था। हम दोनों दबे कदमों के साथ अंदर दाखिल हो गए, लेकिन बदर पहले ही जाकर खाला के पास बैठ गया था, लेकिन मैं आगे नहीं गई थी। मैं अपनी खाला के पास सोफे के पीछे जाकर खड़ी हो गई और फिर आहिस्ता से उनके कान के पास गई और जोरदार आवाज में कहा, सरप्राइज। मेरी अचानक इतनी ऊंची आवाज सुनकर वो उछल पड़ी और मुझे देखते ही वो बेहद खुश हुई थी और फौरन मुझे अपने गले लगा लिया। मैं भी उनके गले लग गई। मैं काफी देर के बाद उनके घर गई थी, इसलिए उन पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। उन्होंने मुझे खुद से अलग किया और फिर मुझे सोफे पर बिठाया। वो मेरे यहाँ आने से हमेशा ऐसे ही खुश हुआ करती थी। मेरी खाला ने मुझसे पूछा कि मैं क्या खाऊंगी, तो मैंने कहा कि जो मर्जी बना लें, मैं सब खा लूंगी। मेरी खाला ने खुशी से इस बात में सर हिलाया और फिर कुछ देर पास बैठने के बाद किचन में चली गई। मैं पानी पीकर किचन से बाहर आई तो बदर अभी तक वहीं सोफे पर बैठा मोबाइल पर कुछ कर रहा था। मैंने पहले सोचा कि उसके पास जाऊं कि ना जाऊं, फिर मैं उसके पास जाकर सोफे के एक साइड पर होकर बैठ गई। मुझे वहां पर बैठता देखकर बदर ने मोबाइल एक साइड पर रखा और मेरी तरफ देखने लगा। उसकी तपिश अपने ऊपर महसूस करके मैंने उससे कहा कि क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा कि मैं कब तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तो सामने मौजूद टीवी देख रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी नजरें उठाई और उसे देखा तो वो सच में टीवी देख रहा था। मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। वो मुझे देखकर हंस रहा था, लेकिन मैंने उसे कोई भी रद्द अमल नहीं दिया। मैंने सर झटक कर उससे कहा कि मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो उसने अपनी हंसी पर काबू किया और जल्दी से टीवी को रिमोट की मदद से बंद किया और मेरी तरफ मतवज्जे हो गया। उसे अपनी जाने मतवज्जे देखकर मैंने अपना गला साफ किया और उससे कहा कि मुझे कहीं पर जाना है, लेकिन मैं वहाँ अकेली नहीं जा सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वहाँ पर ले जाओ।
बदर मेरी बात सुनकर थोड़ा चौंका और फिर कहा कि तुम कहाँ जाना चाहती हो और अकेली क्यों नहीं जाना चाहती? मैं घर वालों को बताकर वहां पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने उनको बता दिया तो वो मुझे कभी भी वहां पर जाने नहीं देंगे। इसलिए ही तो आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने जाना कहाँ है? मुझे उस जगह के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ है। बस इतना पता है कि वो इसी शहर में है और वो हमारी खुद की हवेली है। बदर ये सब सुनकर बिल्कुल मेरी तरह शॉक्ड हो गया कि हमारी एक हवेली भी थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। मैंने बदर से कहा कि बस एक मसला है कि मुझे नहीं पता कि वो हवेली कहाँ पर है, इसलिए तुम्हें ही पता करना होगा कि वो हवेली कहाँ पर है। मैं हर हाल में वहां जाना चाहती हूँ। अगर खाला या खालू को इसके बारे में पता चल गया तो शामत तो मेरी ही आएगी कि मैं तुम्हें वहां पर क्यों लेकर गया। तुम तो एक साइड पर हो जाओगी। ऐसी भी बात नहीं है, भला मैंने कब तुम्हारे साथ ऐसा किया? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे वहां पर जाना है और तुम्हें मुझे वहां लेकर जाओगे, वरना तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं क्या करूंगी। मैं इतना कहकर वहां से चली गई और पीछे वो मुझे आवाज़ ही देता रह गया। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो ज़रूर मान जाएगा। दिन जल्दी से गुजर गए और अब मैं वापस अपने घर आने के लिए तैयार हो रही थी। उन दिनों में मैंने अपनी खाला के साथ बहुत मज़ा किया था। हम सब शॉपिंग पर भी गए थे और खाला ने मुझे ढेर सारे कपड़े लेकर दिए थे। उस दिन की बात के बाद मैंने बदर से कोई भी बात नहीं की थी। अगर वो कोई बात करता भी था तो उसके जवाब दे देती थी, लेकिन खुद से कोई भी बात नहीं की थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो ऐसे ही मानेगा और मुझे उसे हर हाल में मनाना था। खाला ने ही बदर को कहा कि वो मुझे घर छोड़ आए, जिस पर उसने इस्बात में सर हिला दिया और मुझे गाड़ी में बिठाकर मेरे घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। हम अपनी मंजिल की तरफ रमादमा थे और मैंने अभी तक बदर से कोई भी बात नहीं की थी, बल्कि मैंने तो गाड़ी में बैठते ही अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया था और बाहर आते जाते मनाजिर को देखने लगी थी। जब बदर ने मुझे मुखातिब किया, मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में मसरूफ रही। हुरिया, मेरी बात तो सुनो। क्या है? क्या कहना है? तुमने जो बार बार मुझे तंग कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कितनी जिद्दी हूँ, और ये बात आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। मुझे पता है कि तुम कितनी जिद्दी हो और इसी वजह से मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस बात का सुनकर मेरी तो आंखें ही खुली की खुली रह गईं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मान गया था, लेकिन शर्त का सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुई थी कि उसने कौन सी शर्त रखी होगी। इसलिए मैंने खुद ही उससे पूछ लिया। मेरी शर्त यह है कि मैं तुम्हें उस जगह पर सिर्फ 1 घंटे के लिए लेकर जाऊंगा। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। बदर की बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी कि मैं 1 घंटे में वहां क्या देखूंगी, लेकिन फिर मैंने बदर को शर्त की हामी भर दी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है मिस्टर बदर। तो फिर ठीक है, मैं उस हवेली के बारे में जल्द ही पता करवा दूंगा और फिर तुम्हें जल्द ही वहां पर ले जाऊंगा। बदर की बात पर मैं तो बेहद खुश हो गई थी। मैंने एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द खारिज किया। उस सांस को खारिज करते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई हो। कुछ ही देर में मेरा घर आ गया। बदर ने गाड़ी रोकी तो मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बदर गाड़ी से नहीं निकला था। जिस पर मैंने उससे कहा कि तुम अंदर नहीं आओगे। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए मैं सुबह चक्कर लगाऊंगा। तुम जाओ घर, मैं अभी चलता हूँ। मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया और उसे अल्लाह हाफिज कहा और घर के अंदर दाखिल हो गई। मेरे अंदर दाखिल होते ही बदर भी चला गया। अंदर जाकर मैं सबसे मिली और फिर अपने कमरे में चली गई। मैं खाना खाला की तरफ से खाकर ही आई थी, इसलिए अब खाना नहीं खाया था। कमरे में जाकर मैं बेड पर लेट गई और जल्द ही मैं नींद की वादियों में उतर गई। अगले दिन फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर नीचे सबके साथ नाश्ता कर रही थी और फिर कुछ ही देर में यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन अब तक बदर मेरे पास कोई खबर लेकर नहीं आया था। ये हफ्ते का दिन था जब मैं अपने कमरे में बैठी बदर के बारे में सोच रही थी कि वो अभी तक क्यों नहीं आया था और ना ही उसने कोई बात की थी। मैं ऐसे ही बैठी थी जब अचानक मेरे कमरे में फरहत भी आई और मुझसे कहा कि बदर साहब आए हैं और आपको बुला रहे हैं। मैंने उनको आने का इशारा किया तो वो खुद वापस चली गई, जबकि मुझे हैरानगी हुई कि वो खुद ही कमरे में आ जाता। इस तरह फरहत भी को क्यों भेजा? सारी सोचें झटक कर मैं कमरे से बाहर गई और वहां से सीधा ड्राइंग रूम में चली आई। सामने ही बदर सोफे की पुश से टेक लगाए बैठा था।
मैं कमरे में दाखिल हुई और सीधा उसके बराबर जाकर बैठ गई, जिससे बदर ने अपनी बंद आंखें खोली और मुझे देखा। जब उसने आंखें खोली तो मैंने उससे सलाम ली, जिसका उसने जवाब दिया और फिर कहा कि हम दोनों कल इस हवेली में जा रहे हैं, लेकिन एक बात ये कि सिर्फ 1 घंटा, इससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं रहने दूंगा। सच्ची? उसकी बात सुनकर मैं तो खुशी से उछल ही पड़ी थी, इसलिए उससे तस्दीक चाही। हाँ सच में, हम सुबह वहाँ पर जाएंगे, इसलिए तुम 11 बजे तैयार हो जाना, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं फिर से उसके पास बैठ गई और कहा कि तुमने घर वालों से इजाज़त ली? हाँ, कालू से ले ली थी इजाज़त कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी। मैंने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया था। वैसे एक बात तो बताओ कि तुम्हें उस हवेली का पता कैसे चला कि वो कहाँ पर है? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें वहाँ जाने से गर्ज थी तो मैं लेकर जा रहा हूँ, यही बहुत है। अच्छा ठीक है, नहीं बताना तो ना बताओ, मगर गुस्सा तो ना हो। देखो, जब तुम गुस्सा होते हो तो मुझे तुमसे डर लगता है, इसलिए मेरे सामने गुस्सा मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ने बसेरा किया। ठीक है, नहीं करूँगा गुस्सा, लेकिन तुम भी फजूल बातें मत किया करो। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी। कुछ देर बाद बदर वापस चला गया तो मैं भी अपने कमरे में आ गई ताकि कल के लिए तैयारी कर सकूं। मैं कल के लिए इतनी पुरजोश थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं। काफ़ी देर चेक करने के बाद मैंने एक ड्रेस फाइनल किया था कि कल मैं ये ड्रेस पहनूंगी। वो मैरून कलर की फ्रॉक थी जो कि पैरों तक थी और उसके ऊपर गोल्डन कलर का दुपट्टा था। वो बिल्कुल सिंपल सी फ्रॉक थी। फिर मैंने उसके साथ की हील निकाली जो मैंने उस ड्रेस के साथ मैचिंग करके ली थी। वो सब मैंने एक साइड पर रखा और फिर बेड पर आकर लेट गई। ये दिन बहुत जल्द ही गुजर गया था और अगला दिन भी निकल आया था। आज मौसम ठंडा था जो कि माहौल को बहुत खूबसूरत बना रहा था। मैंने 10 बजे तैयार होना शुरू किया और आधे घंटे में ही तैयार होकर अपने कमरे में बैठी बदर के आने का वेट कर रही थी, जिसने 11 बजे का टाइम दिया था, लेकिन मैं आधा घंटा पहले ही तैयार हो गई थी। करते करते 11 भी बज गए थे और फिर पूरे 11 बजे मेरे मोबाइल पर बदर का मैसेज आया था कि मैं नीचे आऊं। मैं जल्दी से नीचे गई, चूंकि नीचे कोई भी नहीं था इसलिए किसी ने भी मुझे नहीं देखा। मैं बाहर आई तो बदर सामने ही गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था और मेरे वहां आते ही उसने मुझे देखा और देखता ही रह गया। मैंने उसे बहुत बार बुलाया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। कुछ देर यूं ही गुजरी तो मैंने तंग आकर उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई तो वो होश में आया और गड़बड़ाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं गाड़ी में बैठी और फिर वो भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी घर से बाहर निकाली और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा दी। मैंने उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन गाड़ी में मौजूद खामोशी की वजह से मुझे बोलना पड़ा। मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने बदर से पूछा तो उसने कहा कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत थी, आम रूटीन वाले कपड़े पहन लेती, हम शादी पर थोड़ी ना जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरा सारा मूड ख़राब हो गया था। फिर मैंने भी उससे कहा कि ज़रूरी तो नहीं कि इस तरह की ड्रेस शादी पर ही पहने जाएं, और ये मेरे कपड़े हैं, मेरा जब दिल चाहेगा मैं इन्हें पहनूंगी। मैं उस हवेली में जाने के लिए इतनी बेसब्री हो रही थी और मैंने वहाँ पर जाकर तस्वीरें भी बनवानी हैं और वो तस्वीरें तुम ही बनाओगे। मेरी बात सुनकर उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट ने बसेरा किया था, लेकिन मेरे देखते ही वो सिमट गई थी। कुछ ही देर में हम लोग एक आलीशान हवेली के सामने थे। हम दोनों जल्दी से गाड़ी के अंदर से निकले और दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन दरवाजे को देखते ही हमें मायूसी हुई थी कि उस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने अफसुर्दगी से बदर की तरफ देखा जो कि शायद कुछ सोच रहा था, और फिर अचानक ही उसने मेरे सर पर अपने दोनों हाथ रखे और मेरे सर पर पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे हो मेरे सर से? मेरे सर में ताले की चाबी नहीं है जो यूं देख रहे हो। और फिर कुछ ही देर में उसने मेरे सर से एक काली पिन उतारी और उससे दरवाजे को खोलने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? इस छोटी सी पिन से इतना बड़ा दरवाज़ा कैसे खुलेगा? मैं अभी ये कह ही रही थी जब अचानक वो ताला खुल गया तो मैं हैरत से उसे देखने लगी, जो कि सवालिया नज़रों से मुझे ही देख रहा था। ठीक है, मैं गलत थी। मुझे क्या पता था कि इससे भी दरवाज़ा खुल जाता है? अगर पता होता तो मैं खुद ना खोल लेती। अब ऐसे मुझे मत देखो, अंदर चलो। उसने बगैर कोई भी सवाल जवाब किए बगैर मेरा हाथ थामा और मुझे अंदर ले गया। अंदर भी एक दरवाज़ा था जिसे भी बदर ने अपनी पिन के साथ ही खोला था, और फिर हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी। ये हवेली इस कदर खूबसूरत थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी।
मैं वहाँ पर मौजूद हर चीज़ को बहुत गौर से देख रही थी, जो कि अपनी मिसाल आप थी। हम वहाँ से आगे को बढ़े जहाँ पर सीढ़ियाँ थी। हम दोनों वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए, जहाँ पर कतार के साथ साथ बहुत ज़्यादा कमरे बने हुए थे। मैं उनमें से सारे कमरे चेक कर रही थी, जो कि सभी बहुत खूबसूरत थे। बदर मेरे साथ ही था, लेकिन फिर अचानक किसी की कॉल आ गई, जिसे सुनने वो बाहर गया था, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल का मसला था। मैं कमरे में दाखिल होने लगी थी जब अचानक मैंने दरवाजे पर लगी कुंडी को देखा, तो मैंने खुद ही पिन की मदद से वो दरवाज़ा खोल लिया, लेकिन अंदर अंधेरा था और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। इसलिए मैं यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगी कि कुछ जलाने के लिए मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, जिसे पूरा करने के लिए मैंने किचन की तलाश की, जो कि मुझे जल्द ही मिल गया। मैं जल्दी से किचन में कुछ ढूंढने लगी, लेकिन जो ढूंढ रही थी वो तो नहीं मिला, लेकिन एक चिराग ज़रूर मिल गया, जो कि काफ़ी पुराना था, जिसकी वजह से उसमें मौजूद तेल गंदा हो चुका था। मैंने माचिस की तलाश की, जो कि मुझे कुछ ही देर में मिल गई। फिर मैंने वो चिराग जलाया और उसी कमरे की जानिब बढ़ गई। उस कमरे में दाखिल होते ही मुझे अजीब सी वहशत हुई थी। मैंने वो चिराग कमरे के वस्त में रखा और फिर बाहर आ गई, क्योंकि उस कमरे में कोई भी चीज़ नहीं थी। वो कमरा मुकम्मल तौर पर खाली था, जिस पर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि बाकी सारे कमरे ही सामान से भरे पड़े थे। मैंने वो दरवाज़ा बंद किया और नीचे आ गई, क्योंकि मुझे यहाँ अकेले खौफ महसूस हो रहा था। मैं नीचे आई तो बदर भी बाहर आ चुका था। तुम नीचे क्यों आ गई? सारी हवेली देख भी ली, और वो भी इतनी जल्दी? नहीं, मैंने सारी हवेली नहीं देखी, बस तुम नहीं थे तो मुझे अकेले में डर लग रहा था, इसलिए मैं नीचे आ गई। अच्छा चलो, मेरी कुछ तस्वीरें भी बनाओ। तुम अपने मोबाइल में बनाना, क्योंकि मैं अपना मोबाइल घर छोड़ आई हूँ। बदर ने इस्पात में सर हिलाया और मेरी तस्वीरें बनाने लगा। मैंने मुख्तलिफ पोज में अपनी तस्वीरें बनवाई थी और कुछ बदर के साथ भी बनवाई थी। चलो, 1 घंटा हो गया है, वापस चलते हैं। बदर, थोड़ी देर और रहने दो यहाँ पर। नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ 1 घंटा। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। हम दोनों दरवाजे लॉक करके गाड़ी में बैठ गए और फिर गाड़ी को सड़क पर डाल दिया। बदर, मुझे भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं किसी रेस्टोरेंट में तुम्हें लेकर चलता हूँ, वहाँ खाना खा लेना। मैंने उसकी बात सुनकर इस्पात में सर हिलाया और फिर कुछ ही देर बाद हम एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहाँ से फारिग होकर हम घर वापस आ गए थे। घर आने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई थी और बदर अंदर आए बगैर ही वापस चला गया था। कमरे में आकर मेरा सर बहुत भारी भारी हो रहा था, जैसे कोई चीज़ दिमाग के अंदर रख दी हो। जब से मैं हवेली से निकली थी तब से मुझे अपनी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए मैंने बुखार की टेबलेट ली और बेड पर जाकर सो गई। शाम को मेरी आंख तब खुली जब फरहत बी ने मुझे उठाया कि सब आपका नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जल्दी से बेड से उठी, लेकिन अभी भी मेरी वैसी ही हालत थी जैसी कि सोने से पहले थी। मैं फ्रेश होके फरहत बी के साथ ही नीचे आई थी। नीचे आकर मैं कुर्सी घसीट कर बैठी और खाना शुरू किया। बाकी सब भी खाना खा रहे थे। खाने के दौरान मैंने किसी से कोई बात नहीं की थी। हुरिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दादी ने पूछा था, क्योंकि मेरा चेहरा बहुत सुर्ख हो रहा था। जी दादी, ठीक हूँ, बस कमज़ोरी हो रही है, इसलिए मैंने मेडिसिन ले ली है, कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। फिर दादी ने भी कोई सवाल नहीं किया था। मैं खाना खाकर सीधा अपने कमरे में गई, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पर बैठती तो ज़रूर नीचे गिर जाती। कमरे में आकर मैंने एक और टैबलेट ली और सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। मैंने उठने की कोशिश की तो सर में शदीद दर्द की लहर उठी। मैंने याद करने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो याद आया सुबह मैं पानी पीने के लिए उठी थी, लेकिन जैसे ही मैं उठी थी मुझे ऐसे लगा मेरे जिस्म से जान ही निकल गई है। थोड़ी चलने के बाद मुझे चक्कर आए और मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। सभी घर वाले मेरे पास थे। मेरे होश में आते ही सब मेरी तरफ बढ़े और मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगे। मैंने उनसे कहा कि मैं अब पहले से बेहतर हूँ, जिस पर उन्होंने सुकून का सांस हवा के सुपुर्द किया। मेरी खाला भी आई हुई थी, जो कि मेरे पास ही बैठी हुई थी, लेकिन बदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे बुरा लगा कि वो मेरी तबीयत का सुनकर भी नहीं आया था। आराम करने की गर्ज से सब मुझे अकेला कमरे में छोड़कर बाहर चले गए थे। उनके जाने के कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो बदर अंदर दाखिल हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसे लगे कि मैं सो रही हूँ। वो धीरे से चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे पास पड़ी कुर्सी को आगे की तरफ घसीट कर उस पर बैठ गया। उसने मेरा बायां बाजू नरमी से थामा, जिस पर कैनोला लगा हुआ था। उसे सहलाने लगा। उसकी इस हरकत से मेरे हाथ में गुदगुदी हुई थी।
लेकिन फिर मैंने खुद पर जब्त कर लिया। बदर ने मेरे हाथ पर बोसा दिया और कहा कि तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, इसलिए ही तो बार बार बीमार हो जाती हो। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है, इसलिए तो जानबूझकर बीमार हो जाती हो। जब तुम मेरे पास आओगी तो देखना मैं तुम्हारा कैसे ख्याल रखूंगा, कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हुरिया, और तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। उसकी बातें सीधा मेरे दिल में लग रही थी और मुझे बेहद खुशी भी हो रही थी कि जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ था। मैं भी बदर से बचपन से मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि बदर मुझे पसंद करता है या नहीं। अच्छा, तो कब लेकर जा रहे हो मुझे अपने साथ? मैंने अपनी दोनों आंखें खोल कर उससे पूछा तो बदर की हैरत से दोनों आंखें ही खुल गई थी। तुम नाटक कर रही थी सोने का? हाँ, मैं कर रही थी, क्योंकि ऐसे तुमने इजहार मोहब्बत करना नहीं था, इसलिए मुझे ऐसे ही करना पड़ा। और अब मेरे सवाल का जवाब दो, कब लेकर जा रहे हो अपने घर? बहुत जल्द, बस तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने हल्की फुल्की बातें की। डॉक्टर ने मुझे उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया था और अब मैं अपने घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ चुकी थी। कुछ ही देर में हम लोग घर पहुंच गए। मेरी मामा मुझे कमरे में छोड़ आई थी ताकि मैं रेस्ट कर सकूं। कमरे में आकर मैं जल्द ही सो गई थी, क्योंकि कुछ दवाइयों का असर था और कुछ मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। रात को मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरे कमरे में कोई है जो मुझे घूर रहा है, लेकिन मेरे देखने पर वहां कोई भी नहीं होता था। मैंने पूरी रात ही लाइट्स बंद नहीं की थी, क्योंकि मुझे कमरे से डर लग रहा था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरी जब भी आंख लगती तो मुझे ऐसे महसूस होता कि कोई मेरे ऊपर झुक रहा है, जिसकी वजह से मैं अपनी आंखें खोल देती। रात के 12 बज रहे थे। बदर लोग आज रात हमारे घर ही रुके थे। मैंने बदर को कॉल की, लेकिन उसने नहीं उठाई। फिर मैंने मैसेज किया, लेकिन उसका जवाब भी नहीं आया। मैंने दोबारा कॉल की तो इस बार उसने उठा ली। क्या हुआ है हुरिया? सब खैरियत है जो इस वक्त कॉल कर रही हो? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे कि मेरे कमरे में कोई है जो मुझे ही देखे जा रहा है। प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा, तुम रुको, मैं आता हूँ। मैंने फोन बंद किया और उसका वेट करने लगी। कुछ ही देर में वो आ गया और उसके हाथ में पानी का गिलास भी था। उसने मुझे पानी पिलाया और मेरे पूरे कमरे में देखा, जहां पर कोई भी नहीं था। यहाँ पर कोई भी नहीं है हुरिया, शायद ये तुम्हारा वहम हो। उसने इतना कहकर आयतुल कुर्सी पढ़ी और फिर मेरे ऊपर फूंक मारी और मुझे सोने का कहकर वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैं जल्द ही सो गई और अब मुझे एक बार फिर डर नहीं लगा था। अगली सुबह मैं उठकर नीचे आई, जहां सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और मुलाजमा खाना लगा रही थी। मैं भी जाकर बैठ गई तो सब मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिस पर सब ने इस्बात में सर हिला दिया। मैं वहां से अपने कमरे में आ गई और आकर मोबाइल पर गेम खेलने लगी, जब अचानक मुझे याद आया कि कुछ दिनों बाद मेरी पार्टी है जिसमें मैंने हिस्सा ले रखा है, और वो हिस्सा मैंने तकरीर में लिया था, क्योंकि मुझे तकरीर वगैरह करना बहुत पसंद था। मैंने जल्दी से अपने बैग से तकरीर वाला सफ़ा निकाला और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। मैंने अपना दुपट्टा बेड पर फेंका और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी तकरीर शुरू की। मैं आईने में खुद को देखकर तकरीर कर रही थी, कब अचानक मैंने आईने में किसी का अक्स महसूस किया। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मुझे घूर रहा है। मैं जल्दी से पीछे मुड़ी, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे कहीं भी कोई भी नजर नहीं आया। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, इसलिए मैंने सर झटक दिया और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। उसके बाद मैंने 2-3 बार आईने में किसी का अक्स महसूस किया था, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती तो वहां पर कोई भी नहीं होता, जिससे मुझे लगा कि मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, इसलिए शायद मुझे बार बार किसी के होने का वहम हो रहा है। कितनी ही देर में आईने के सामने प्रैक्टिस करती रही, फिर जब थक गई तो बेड पर आकर बैठ गई। मैं बेड पर बैठी थी जब अचानक मुझे गुलाब के फूल की खुशबू आने लगी, और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या होता अगर एक गुलाब इस वक्त मेरे पास होता। मैं बेड पर बैठी यही सोच रही थी जब अचानक ड्रेसिंग टेबल से हेयर ब्रश खुद ब खुद नीचे गिरा। उसे नीचे गिरता देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि एक ब्रश खुद कैसे गिर सकता है। फिर मैं उस ब्रश को उठाने के लिए बेड से उठी और उसे उठाकर दोबारा से टेबल पर रख दिया। मैं वापस मुड़ने लगी थी जब मेरी नज़र आईने पर पड़ी तो वहीं पर टिकी रह गई, क्योंकि मैंने आईने में देखा कि मेरे सर पर एक गुलाब का फूल है। मैंने अपने सर से उस गुलाब को उतारा और अपने हाथ से पकड़कर देखने लगी, जो कि सच में था। मुझे उस गुलाब से खौफ महसूस होने लगा,
क्योंकि मेरे पास तो कोई गुलाब नहीं था, तो वो गुलाब मेरे पास कैसे आ गया? मैंने उस गुलाब को दूर फेंक दिया जब अचानक ड्रेसिंग टेबल से लिपस्टिक खुद ब खुद नीचे गिरी और फिर खुद ही हवा में मुअल्लक हो गई। वो लिपस्टिक खुद ही हवा में चलती हुई आईने के पास आई और उस पर कुछ लिखने लगी। मैं ये सब देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि ये सब मेरी सोच से बरक्स था और ना ही मैंने इससे पहले ऐसा कभी होते देखा था। वो लिपस्टिक खुद ही कुछ लिख रही थी। मैंने आईने पर देखा तो उस पर लिखा था कि तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। मैं ये पढ़कर लड़खड़ाती हुई 2 कदम पीछे चली गई। ये सब देखकर तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे दमे की बीमारी थी, जिसकी वजह से जब मुझे किसी चीज़ से खौफ महसूस होता था तो मुझे सांस लेने में मुश्किल होती थी। मैं खौफ से लरज रही थी जब अचानक मेरे ऊपर फूलों की बरसात होने लगी और साथ ही मेरा इनहेलर हवा में उड़ता हुआ मेरे पास आकर गिर गया। ये सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने जल्दी से वो इनहेलर थामा और उसे मुंह से लगाकर फिर जोर जोर से सांस लेने लगी। कुछ देर ऐसा करने के बाद मेरी तबीयत पहले से ठीक हो गई, लेकिन वो फूल अभी भी मुझ पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से दौड़ती हुई कमरे से निकली और बाहर चली गई। मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली थी, जिसकी वजह से सामने से आने वाले के साथ मेरी टक्कर हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से नीचे गिरते बची थी, क्योंकि सामने वाले ने मुझे हाथ की मदद से पकड़ लिया था। मैंने सामने देखा तो सामने बदर खड़ा मुझे सवालिया नजरों से देखने लगा। खौफ की वजह से मेरे माथे से पसीना आ रहा था और साथ ही मैं कपकपा भी रही थी, जिसको देखकर बदर दंग रह गया था। उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ है, इतनी खौफजदा क्यों हो? मैंने उससे कहा कि कोई मेरे कमरे में है। अचानक ही मेरे कमरे में बहुत से फूल आ गए और आईने पर किसी ने कुछ लिखा भी था। बदर मेरी बातें सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे अपने कमरे में गई और अंदर जाते ही मैं दंग रह गई, क्योंकि सामने सब कुछ ठीक था। फूलों का नाम और निशान भी नहीं था और ना ही आईने पर कुछ लिखा था। कमरे को देखकर बदर ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो मैंने उससे कहा, यहाँ सच में कोई था। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे बदर? मैं सच कह रही हूँ। मैं जब से इस हवेली से वापस आई हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। देखो, ये सब तुम्हारा वहम है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो मैं तुम्हें बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता हूँ। नहीं, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ। वो बाहर चला गया तो मैं बेड पर और उनसे टेक लगाकर बैठ गई और इस सब के बारे में सोचने लगी, जब अचानक मेरे सामने गुलाब के बहुत सारे फूल आकर गिर गए। मैं उनको देखकर फौरन वहां से उठ गई और ऊंची आवाज में कहा कि तुम कौन हो जो ये सब कर रहे हो? मैं हूं तुम्हारा आशिक जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कोई भी डर जाता। लेकिन तुम हो कौन जो मुझे इस तरह से मुझे डरा रहे हो? उसकी फिर आवाज आई और इस बार उसने कहा कि मैं एक जिन हूं जो तुम पर आशिक हो गया हूं। इतना कहते ही वो जिन मेरे सामने आ गया, जो कि इतना भयानक था कि मेरे हलक से एक जोरदार चीख बुलंद हुई और मैं चीखें मारती हुई नीचे चली गई और नीचे जाते ही अपनी दादी के कमरे की तरफ बढ़ी, जो कि मेरी चीखें सुनकर बाहर आ रही थी। मैं जल्दी से उनके साथ लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। वो मुझे इस हालत में देखकर परेशान हो गई थी। बाकी सब भी यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। क्या हुआ है हुरिया, ऐसे क्यों रो रही हो? दादी, मुझे वो मार देगा। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करेगा और फिर अपने साथ ले जाएगा। मुझे उसके साथ नहीं जाना। किसकी बात कर रही हो? कौन ले जाएगा तुम्हें अपने साथ? बदर ने हुरिया से पूछा, जो कि अभी भी रोती ही जा रही थी। मैं लेकर जाऊंगा इसे अपने साथ और इससे ही शादी करूंगा। पहले तो तुमने मुझे रोक दिया, अब कैसे रोकोगे? बदर उससे पूछ ही रहा था जब अचानक हुरिया की आंखें मुकम्मल तौर पर सफेद हो गईं और वो इतनी भयानक आवाज में बात कर रही थी कि ऐसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई और हो। तुम कौन हो? बदर ने उससे पूछा। मैं एक जिन हूं जिसको तुम लोगों ने कैद कर रखा था और अब मैं आज़ाद हो गया हूं। मैं अब इससे शादी करके इसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। हुरिया वहां से जाने लगी जब बदर ने उसे जोर से पकड़ लिया और उसके कान के करीब आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा। उस विर्द से हुरिया चीख उठी, लेकिन कुछ ही लम्हों में वो बेहोश हो गई। बदर उसे उठाकर कमरे में ले गया और बेड पर जाकर उसे लिटा दिया। सब घर वाले परेशानी से हाल में बैठे थे और सोच रहे थे कि उस जिन से कैसे छुटकारा पाए। तो अचानक वहां पर बदर आ गया और वो सबके सामने खड़ा हो गया। आखिर ये जिन है कौन जिसको आपने कैद कर रखा था? मैं बताती हूँ तुम्हें कि सच क्या है। हुरिया की दादी ने कहा तो वो उनकी जानिब मुतवज्जे हो गया। हम पहले एक बंगले में रहते थे जो कि किसी वजह से हमने बेच दिया और एक हवेली खरीद ली।
जो कि बहुत ही प्यारी थी। हम सब उस हवेली में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर रहने लगे। मेरे बेटे की अभी नई नई शादी हुई थी, जिसकी वजह से मैं उसकी बीवी आफिया को कहती कि वो हर वक्त तैयार रहा करे। हमें वहाँ रहते कुछ महीने हो गए थे और उस दौरान हमारे साथ बहुत अजीब अजीब वाक़यात हुए थे। फिर एक दिन वो जिन हमारे सामने आ गया और कहा कि मैं आफिया पर आशिक हूँ और इससे शादी करके इसे अपने साथ ले जाऊंगा। उस दौरान उसने हमें और आफिया को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इस सब से छुटकारे के लिए हमने एक आमिल की मदद ली, जिसने उस जिन को वहां पर मौजूद एक कमरे में बंद कर दिया और हमें वो हवेली छोड़ने का कहा, और फिर हम लोग वो हवेली छोड़कर यहाँ पर आ गए। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जिन इस कमरे से आज़ाद कैसे हुआ और वो हुरिया पर कैसे आशिक हुआ। मुझे उनकी बात सुनकर खुद पर बहुत गुस्सा आया कि मैं हुरिया को वहां पर क्यों लेकर गया। आखिर मैं ना लेकर जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हुरिया ने ही मुझसे कहा था कि मैं उसे उस हवेली में लेकर जाऊं। मुझे उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी थी और मैं उसे वहां पर ले गया। ये सुनने के बाद बदर को घर वालों से बहुत डांट पड़ी थी, लेकिन फिर सबने सब्र से काम लिया। हुरिया की माँ आफिया रो रो कर हलकान हो गई थी। सब उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। दादी, आप उस आमिल को बुलवाएं जिसने पहले उस जिन को कैद में किया था। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका बेटा अब ये काम करता है क्योंकि वो सारा इल्म अपने बेटे को देकर गया है। हम उससे मदद ले सकते हैं। बदर, मैं तुम्हें उसका एड्रेस बताती हूँ, जाओ उसे अभी यहाँ पर लेकर आओ। कुछ ही घंटों में बदर उस आमिल के साथ घर पर पहुंच चुका था। बदर ने उस आमिल को सब कुछ बता दिया था, जिस पर उस आमिल ने उन्हें तसल्ली दी थी कि आपने वक्त गुजरने से पहले ही बुलाकर अच्छा किया है। मैं अब उस जिन को काबू कर सकता हूँ क्योंकि वो जिन अभी कमज़ोर है, मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। बदर उस आमिल को हुरिया के कमरे में छोड़ आया और ख़ुद भी वहीं खड़ा हो गया। उस आमिल ने अपनी चीज़ें नीचे रखी और मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया, जिससे उस कमरे में उस जिन की चीखों पुकार गूंज उठी थी। उस आमिल ने उस जिन से कहा कि वापस लौट जा, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो उस जिन ने कहा कि मैं इसको साथ लेकर जाऊंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। कुछ देर बाद आमिल बाहर आया और एक धागा दिया और कहा कि यह धागा हुरिया की कलाई पर बांध दिया जाए। बदर ने हुरिया की कलाई पर वो धागा बांध दिया और फिर उस आमिल ने कहा कि कुछ दिनों बाद मैं उस जिन को कैद में करने के लिए एक चिल्ला काटूंगा और उस दौरान आपको हुरिया का बहुत ख्याल रखना होगा। ये कहकर आमिल जल्द ही वापस चला गया। कुछ दिन जल्द ही गुजर गए और वो आमिल चिल्ला काटने कब्रिस्तान में गया और उसने बदर को कहा था कि वो हुरिया के पास बैठकर मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द करे, जिस पर उसने अमल किया था। बाकी घर वाले भी हुरिया के पास ही बैठे थे। चिल्ले के दौरान हुरिया को बहुत दौरे पड़े थे, लेकिन फजर की अजान होते ही सब कुछ ठीक हो गया था, जिसका मतलब था कि वो जिन अब कैद में है, जिस पर सबने सुख की सांस ली थी। हुरिया इस सब की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी और वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो गई थी। किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा था, बल्कि उसके साथ नॉर्मल ही रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब अपनी अपनी जिंदगी में फिर से मगन हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।